Wishing you all a very good morning, dear students. This is our English book, Real English, a multi-skill language course for class 3rd. So today we are going to deal with our chapter number 5, The Dolls Festival. तो सबसे पहले हम इसकी लाउड रीडिंग करते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे. Festivals are special occasions. On festival days, we do things that make us happy. We pray to God, wear colorful clothes, meet relatives and friends, exchange gifts, sing, dance, and eat tasty food. Everyone loves to celebrate festivals. Golu is a festival of dolls celebrated in Tamil Nadu. It is a part of 10 days Navratri celebrations when people worship goddess Durga. Young girls and women arrange dolls on a large stand that looks like a flight of steps. These are usually dolls of gods, goddesses, people and animals. The doll stand always has an odd number of steps like 3, 5, 7 or 9. People invite friends and relatives to their homes to see the Golu display. Each guest gets a small bag of gifts. People sing devotional songs and play music. What about the food? On each of the 10 days of Navratri, a special dish called sundal is prepared. The delicious sundal is made with groundnuts, peas and various pulses. The display of dolls stays throughout the Navratri days. On the 10th day, the dolls are taken off the stand and packed away carefully. They will be taken out for the next year's Golu. Every year, people add new dolls to their set and the collection grows larger. The Japanese dolls festival Hinamatsuri is very similar to Golu. The Hinamatsuri dolls are arranged on a red platform. Ornamental dolls of the emperor, empress, attendants, musicians and courtiers are displayed on it. Hinamatsuri is also called Girls' Day. People believe that the dolls will protect them from evil spirits. A sweet dish called amazake is special to the Hinamatsuri festival. We look forward to festivals because they give us a break from our everyday routine. It is also fascinating to learn about them. So, this is all about it. ये हमारी लाउड रीडिंग कंप्लीट हो गई. अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं. ऑड नंबर क्या होते हैं? हमने मैथ्स में पढ़े हैं. ऑड और इवन नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते. तो ऑड नंबर कौन से हो जाएंगे? नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2, जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर. नेक्स्ट देखते हैं. डिवोशनल होता है भक्ति भाव से भरा हुआ. रिलेटेड टू रिलीजियस वर्शिप, अपने धार्मिक पूजा पाठ से जुड़ी हुई जो चीज होती है, धार्मिक गतिविधियों में आस्था को हम बोलते हैं डिवोशनल. क्लियर है? फिर है डिलीशियस होता है बहुत टेस्टी, वेरी टेस्टी. ऑर्नामेंटल होता है आभूषण, सजाने का सामान. ब्यूटीफुल एंड यूज्ड फॉर डेकोरेशन, सुंदर और सजावट का सामान क्या कहलाता है? ऑर्नामेंटल. एम्परर होता है शासक, सम्राट. अ रूलर ऑफ मैनी कंट्रीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्परर या सम्राट. कर्टियर्स होता है जो दरबारी होते हैं, राजा या रानी के दरबार में, उसे बोलते हैं
courtiers, a king or queen's companion in the royal court. तो रॉयल कोर्ट के जो दरबारी होते हैं उन्हें बोलते हैं courtiers. evil, evil होता है शैतान. wicked and harmful, जो बहुत शैतान को हम बोलते हैं विकेड. एंड हार्मफुल, जो खतरनाक हो, खतरे से भरा हुआ होता है, हार्मफुल. तो ईविल हो जाएगा शैतान या नुकसानदायक. स्पिरिट्स होता है सुपर नेचुरल बीइंग्स, जो पवित्र आत्माएं होती हैं उसको हम बोलते हैं स्पिरिट्स. सुपर नेचुरल बीइंग जैसे देवी देवता हो गए, वो सब क्या होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं. ठीक है. रूटीन होता है जो हम रोजाना काम करते हैं उसे हम बोलते हैं रूटीन, जो हमारा दिनचर्या हो जाती है. एक्शंस डन रेगुलरली, जो काम रोज होते हैं उसे बोलते हैं रूटीन. नेक्स्ट इज फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग होता है बहुत ज़्यादा सुंदर, देखने में जो अच्छा लगे. वेरी इंटरेस्टिंग, तो जो हमें आकर्षित करे, प्रलोभित करे, उसे हम बोलते हैं फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. क्लियर है. तो अब हम इसके मीनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं. फेस्टिवल्स आर स्पेशल ओकेजन. त्योहार पर्व होते हैं. स्पेशल ओकेजन, वो खास पर्व होते हैं. ऑन फेस्टिवल डेज वी डू थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी. त्योहारों पर हम वो काम करते हैं जो हमें खुशी देते हैं. वी प्रे टू गॉड, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं. वियर कलरफुल क्लोथ्स, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं. मीट रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों. एंड फ्रेंड्स, और मित्रों से हम मिलते हैं. एक्सचेंज गिफ्ट्स, गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, उपहारों को अदल बदल करते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं. सिंग, गाना गाते हैं. डांस, नृत्य करते हैं. एंड ईट टेस्टी फूड, और अच्छा स्वादिष्ट पकवान या भोजन खाते हैं. एवरीवन लव्स टू सेलिब्रेट फेस्टिवल, सभी को त्योहार मनाने बहुत अच्छे लगते हैं. गोलू इज अ फेस्टिवल ऑफ डॉल्स सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. गोलू त्योहार है तमिलनाडु का, और ये किस चीज़ का त्योहार है, फेस्टिवल ऑफ डॉल्स. गुड़ियाओं का त्योहार है जो कि कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द 10-day नवरात्रि सेलिब्रेशंस व्हेन पीपल वर्शिप गॉडेस दुर्गा. ये 10 दिन का नवरात्रि सेलिब्रेशन का ही एक पार्ट है, जो 10 दिन तक हम नवरात्रि मनाते हैं उसी का ये एक पार्ट है. When people worship goddess दुर्गा, जब लोग गॉडेस दुर्गा या लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं. ठीक है ना. तो 10 दिन तक हम नवरात्रि पूजन करते हैं, उसी में गोलू भी मनाया जाता है, उसी टाइम पे इसे भी मनाया जाता है. यंग गर्ल्स एंड वुमेन अरेंज डॉल्स ऑन अ लार्ज स्टैंड दैट लुक्स लाइक अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स. तो छोटी छोटी लड़कियां और वुमेन, महिलाएं डॉल्स को अरेंज करती हैं एक बड़े से स्टैंड पे. दैट लुक्स लाइक अ फ्लाइट, जो कि एक फ्लाइट की तरह दिखाई देता है. ऑफ स्टेप्स, जैसे सीढ़ी होती हैं उसी तरीके से एक स्टैंड होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं. सीढ़ी नुमा एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर क्या करते हैं, वो डॉल्स को अरेंज करते हैं, जचाते हैं. दीज आर यूजुअली डॉल्स ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस, पीपल एंड एनिमल. तो ये ज़्यादातर भगवानों की मूर्तियाँ होती हैं. डॉल, गुड़िया भी बोल सकते हैं, मूर्ति भी बोल सकते हैं. ठीक है ना. तो ये भगवानों की मूर्ति, देवी देवताओं की, आदमियों की और जानवरों की, जिनको भी वो पूजते हैं उनकी मूर्तियाँ बना के वहाँ लगाते हैं. द डॉल स्टैंड ऑलवेज हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक 3, 5, 7 और 9. जो ये डॉल स्टैंड होता है इसमें हमेशा ऑड नंबर की सीढ़ियाँ होती हैं. या तो एक सीढ़ी होगी, 2 सीढ़ी होंगी, 2 नहीं होंगी, या 3 होंगी, या 5 होंगी, या 7 होंगी. इस तरीके से सीढ़ियाँ लगी होती हैं. क्लियर है यहाँ तक. आगे चलते हैं. People invite friends and relatives to their homes to see the गोलू display. तो लोग अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को अपने घर बुलाते हैं ताकि वो गोलू की सजावट को देख सकें. Each guest gets a small bag of गिफ्ट्स.
तो हर रिश्तेदार को एक छोटा बैग दिया जाता है जिसके अंदर गिफ्ट्स होते हैं। पीपल सिंग डिवोशनल सॉन्ग्स एंड प्ले म्यूजिक, तो लोग क्या करते हैं, भक्ति के गीत गाते हैं और म्यूजिक बजाते हैं, गाने बजाते हैं। व्हाट अबाउट द फूड, फूड का क्या होता है? ऑन ईच ऑफ द 10 days ऑफ नवरात्रि अ स्पेशल डिश कॉल्ड सुंदल इज प्रिपेयर्ड। तो नवरात्रि के 10 दिन, ईच देखो हमने डिस्कस भी किया था, ईच का मतलब होता है हर एक। अब यहाँ 10 दिन की बात हो रही है नवरात्रि के, तो 10 के 10 दिन की बात हो रही है कि हर एक दिन नवरात्रि के 10 दिन एक स्पेशल डिश बनाई जाती है, सुंदल। द डिलीशियस सुंदल इज मेड विद ग्राउंड नट्स, उसे ग्राउंड नट्स, पीस और बहुत सारी पल्सेस से बनाया जाता है। तो ये जो डिलीशियस सुंदल होता है ये किससे बनता है? ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, पीस, मटर और बहुत सारी वेरियस पल्सेस होती हैं, दालें, तो इन सब चीज़ों से मिला के बनाया जाता है। द डिस्प्ले ऑफ डॉल्स स्टेज थ्रू आउट द नवरात्रि डेज, ये जो डॉल्स का प्रदर्शन होता है, देवी देवताओं को जो ये सजाया जाता है, ये 10 दिन तक चलता रहता है, जब तक नवरात्रि चलती है तभी तक चलता रहता है। ऑन द 10th day द डॉल्स आर टेकन ऑफ द स्टैंड एंड पैक्ड अवे केयरफुली, और 10वें दिन जो ये डॉल्स हैं इनको वहाँ से स्टैंड से हटा दिया जाता है, टेकन ऑफ द स्टैंड से उठा लिया जाता है, एंड पैक्ड अवे केयरफुली, और उन्हें ध्यान से पैक कर दिया जाता है। दे विल बी टेकन आउट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स गोलू, और उनको दे विल बी टेकन आउट, उनको रख दिया जाता है अगले साल के गोलू के लिए, ठीक है ना, उन्हें संभाल के पैक करके रख दिया जाता है। एवरी ईयर पीपल एड न्यू डॉल्स टू देयर सेट एंड द कलेक्शन ग्रोज लार्जर, तो एवरी ईयर हर साल पीपल एड न्यू डॉल्स, लोग नई डॉल्स इकट्ठा करते हैं, टू देयर सेट, अपने सेट में और डॉल्स इकट्ठा करते हैं, एंड द कलेक्शन ग्रोज लार्जर, और इसी तरीके से जो उनका स्टॉक होता है डॉल्स का वो बढ़ जाता है, बढ़ते चले जाता है। द जैपनीज डॉल्स फेस्टिवल हिना मत्सुरी इज वेरी सिमिलर टू गोलू, जैसे तमिलनाडु में गोलू मनाया जाता है उसी तरीके से जैपनीज डॉल फेस्टिवल होता है जिसका नाम है हिना मत्सुरी। द हिना मत्सुरी डॉल्स आर अरेंज्ड ऑन अ रेड प्लेटफॉर्म, वहाँ पे एक रेड प्लेटफॉर्म पे डॉल्स को अरेंज कर दिया जाता है। ऑर्नामेंटल डॉल्स, सजी हुई डॉल्स ऑफ द एम्परर, किनकी? एम्परर हमने कौन देखा था? बहुत सारे देशों के जो राजा होते हैं उनको, राजा या रानी को, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्परर। तो एम्परर, एम्प्रेस, रानी, अटेंडेंट्स, उनके दास, म्यूजिशियन जो महान गायक हों, कर्टियर जो उनकी राजा रानी की सेवा में जो लगे होते हैं, दरबारी, उनको, आर डिस्प्लेड ऑन इट, वो सभी इस पे अरेंज किए जाते हैं, रेड प्लेटफॉर्म जो होता है वहाँ सजाए जाते हैं। हिना मत्सुरी इज ऑल्सो कॉल्ड गर्ल्स डे, और इसे गर्ल्स डे के नाम से भी जाना जाता है। पीपल बिलीव दैट द डॉल्स विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इविल स्पिरिट्स, लोगों का मानना है कि ये जो डॉल्स हैं, देवी देवताएं हैं, ये क्या करते हैं? उनकी रक्षा करती हैं बुरी आत्माओं से। अ स्वीट ड्रिंक कॉल्ड अमास्के इज स्पेशल टू द हिना मत्सुरीज फेस्टिवल, एक स्वीट ड्रिंक होता है, मीठा पेयजल होता है जिसका नाम होता है अमास्के, वो स्पेशल होता है हिना मत्सुरी फेस्टिवल में, मतलब वहाँ पे उस ड्रिंक को ज़रूर बनाया जाता है। We look forward to festivals because they give us a break from our everyday routine. We look forward, हम ध्यान रखते हैं, टू फेस्टिवल, कि कब फेस्टिवल आते हैं, इस चीज़ का इंतज़ार में रहते हैं, बिकॉज दे गिव अस अ ब्रेक, क्योंकि वो हमें एक गैप दे देते हैं, ब्रेक दे देते हैं, थोड़ी देर के लिए आज़ादी दे देते हैं फ्रॉम आवर एवरीडे रूटीन, हमारे रोज़मर्रा के कार्य को एक रोक के कुछ अलग सा एहसास देते हैं। इट इज़ ऑल्सो फैसिनेटिंग टू लर्न अबाउट दैम, और उनके बारे में जानना भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, मनोरंजक बात होती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर
नेक्स्ट क्लास में हम इसका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन डिस्कस करेंगे और वोकैबुलरी सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो आपका होमवर्क क्या रहेगा आज के लिए, जितने भी इसके वर्ड मीनिंग्स हैं ये आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और लर्न करने हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।